اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ہلو. ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارے اختر صاحب بول رہے کیا آپ؟ عبدل سے قاضی آپ؟ ہاں. ہاں اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے ہاں. کہ یہ جو وضو بناتے ہیں اپن وضو. ارے وضو بناتے رہو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں بناتے رہو، وضو بناؤ. نہیں جو وضو بناتے ہیں اپن، تو ایک آدمی مجھے بول رہا تھا. ارے بولنے دو کیا ہوتا ہے. ارے تو بات تو سن لو، آپ پہلے سنو گے نہیں ارے وہ بولو تو گے. بولنے دو، یہ سب باتیں سر کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں جیسے وضو بناتے ہیں بتا اپن بتا پھانسنا پھوسنا. چلو. تو وضو میں فرض ہوتے ہیں یا سنت ہوتے ہیں ارے یوں؟ ہوتے ہیں وہ تو فرض. چلو. تو وہ یوں کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہیں؟ وہ یوں کہہ رہا قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا وضو فرض ہے؟ ہاں. کون سا بیوقوف تھا؟ یہ بیوقوف ہے، ہمارے پاس میں ٹیلر ہے. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. ہاں اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، ہاں. اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنا چہرہ دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. جی. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. یہ چار فرض اللہ نے. چار فرض ہے نا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، کونے اس میں تک. کیا شک ہے؟ کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوئی شک ہی نہیں نا. اب وہ کہتا کہ نہیں یہ تو خالی سنت ہے، فرض تو یہ اپنوں نے کی ہے. میں نے کہا کون سا اور ہے کہ یہ بڑا بیوقوف اب وہ کیا ہے آدمی کہ ہے وہ سنتا ہے اس کو، کس کو؟ پاکستان کا ایک مولانا ہے، میں بتاؤں آپ کو. مرزا. نہیں وہ داڑھی والے چاچا آتے، اسماعیل کیا نام اس کا، جو فوت ہو گئے، پہلے اہل سنت الجماعت میں تھے، پھر وہ اہل حدیث بن گئے تھے. ارے وہ تو جنے کتنے ہیں پاکستان میں تو گمراہ کرنے والے. پاکستان میں تو گمراہ صاحب. پاکستان والے تو بہت مردود ہیں صاحب. اشرف آصف جلالی ہے وہ مردود ہے. نہیں آصف جلالی صاحب تو بہت اچھے بیان کرتے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی تھی. وہ تو پہلے جو ارے اس نے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اس کو. نہیں ان کے بارے میں تو نہیں. جیسے یہ اب پلمبر. الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، بتائیے آپ. ہاں تو وہ تو ہوگی نا اس کی توبہ، وہ تو ہو گئی ان کی تو. کہاں کی حساب سے تو لبیک یا اتار کے نعرے پھر میلا. ایک بات تھوڑی ہے. نہیں وہ تو ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی. ارے ایک بات تھوڑی ہے صاحب. لبیک یا اتار کے نعرے، میلاد نامہ پڑھوایا. دیکھو میں تو منکر جو ہوں نا، میں اہل حدیث، دیوبندی، رافضی، ارے تو قادیانی، یہ الیاس قاضی نے اپنے بالوں کو بال مبارک کے بٹوایا صاحب. تو پکا حنفی سنی بریلوی ہوں. اور میں بھی کٹر سنی بھی ہوں. نہیں میں پکا بریلوی، حنفی بریلوی سنی ہوں. سنی تو ابھی دیوبندی سنی کہتے ہیں، اپنا کو سنی کہتے تھے، ہم بھی سنی ہیں، وہ ارے دیوبندی صاحب نہیں کہتے ہیں. ایک شخص اچھا خواب لکھتا ہے ایسا کتاب میں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. جو بھی لکھ رہا ہے خواب وہ اپنے آپ کو تو وہ بیٹھا یہ آپ کی بات میں نے سن لی، وہ آپ کی بات میں سنتا رہتا ہوں، تو آڈیو پہ آتی رہتی ہے. کل پرسوں بھی آپ کی کسی سے بات ہوئی تھی، جمشید علی کون قادری دلی کا تھا وہ. جمشید علی وہابی. نہیں وہابی تو نہیں تھا، وہ سنی تھا. کون تھا وہ آپ سے؟ اچھا جاتے سنی بن بن کے کتنے وہابی ایسے ہیں. حضرت آپ کہاں پہ ہو؟ پھر آپ آؤ نا ہمارے یہاں پہ کبھی. آپ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ میں بول رہا ہوں چتوڑ گڑھ سے. ارے چتوڑ میں ہو؟ ہاں. ہم کیا نام بتا آپ کا؟ میرا نام محمد ہارون رضا. تم نے آیا نا چتوڑ میں حضرت قاضی صاحب کی درگاہ ہے نا وہاں. جی بالکل قاضی چلبی شہر وہاں رحمۃ پر اللہ علیہ. درگاہ پہ ہمارے نماز پڑھی ہے اور 2-3 بار آئے ہوں گے شاید. نہیں. بڑا محبوب آستانہ ماشاء اللہ. اور وہاں پر وہ تھے سردار صاحب، حافظ سردار صاحب. بالکل سید سردار احمد اشرفی صاحب ہے. کس کے خلیفہ تھے معلوم ہے؟ سردار احمد اشرفی صاحب. بالکل. کس کے خلیفہ تھے وہ؟ کس کے خلیفہ تھے وہ؟ حضرت علی حسین اعلی حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں وہ تو ہے نا وہ آستانہ. جو اونچائی تھی وہاں پر رہتے تھے، اونچائی پہ جگہ پہ. ابھی بھی مکان تو وہی ہے، اور آستانہ ان کا تھوڑا سا ادھر کا حضرت بستا. علی حسین اشرفی میاں کے خلیفہ تھے. اشرفی میاں کا خلیفہ ہے وہ. دیکھو اشرفی اور رضوی میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہمارے یہاں پہ. انتقال ہو گیا اب تو ان کا بہت ہاں پہلے. اشرفی رضوی. اور وہیں تھے سید واجد علی صاحب. ہاں واجد علی صاحب ہے، بالکل میرے گھر کے پاس میں ہی اب رہتے تو ہیں وہ. بوڑھے ہو گئے ہوں گے. نہیں اب تو انتقال بھی ہو گیا ان کا کورونا میں. ارے ہاں جی ہاں. وہ جو پانی والے بابا سے مشہور تھے. ہاں وہی پانی والے بابا مشہور ہے. ابھی جو ہم آئے تھے ان کے گھر پہ تھا ان کو. اچھا آپ آئے تھے کیا؟ ان کے گھر پہ رکے ہوئے کھانا مانا کھایا تھا ہم نے. تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ ایم پی میں.
मैं सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सिरोन? हाँ, अच्छा आप तो दाऊद इस्लामी वाले से दूर रहना, बाकी कट्टर सुन्नी बने रहो, वो अच्छी मेरे नहीं, खुशी की बात है। हम क्या कह रहे हैं, दावत इस्लामी से हमको जो बात लगती है हम उसी से नहीं बात देखो, करते इन्होंने मीठे, एक बात हैं। नहीं है, इन्होंने मीठे मीठे रसूल कहलवाया है। हमने इस दौर के अंदर हमने बस एक ही कायदे पकड़ रखा है, मसलक के आला हजरत, बस उन्हीं की तो किताबों दावत पे इस्लामी पढ़ते हैं, वाले से दूर रहना बस। उन्हीं किताबों पे पढ़ते हैं अरे वो कुछ भी करो, मसले का रटो या मसला के और ये ताबीज है कि शरिया करो। काफिर को काफिर मानते हैं, मुसलमान को अरे वो मुसलमान कुछ भी मानते करते रहो, लेकिन इन लोगों से दूर रहना बस, हैं। नहीं 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 ठीक नहीं, है। बिल्कुल हाँ, तो इनसे थोड़ा हम तो दूरी अब करी है। अगर तुम इनको सही मानोगे तो समझो फिर कट्टर सुन्नी नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो इनसे जितनी दूरी है ये करते ही है, इन हम लोगों ने चलिए। अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया है, अच्छा और लियास काजी ने अपने आप को प्यारे बप्पा जान कहलवाया, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया है। तो यार ये आप डायरेक्ट उनसे बात करो ना कि यार ये भाई तुम्हारे ये अरे वो मामला है। मानते थोड़ी है, सलाम का मजाक बनाया, कहाँ तक बातें बताऊं उसकी। हाँ नहीं कि नहीं, वो आलू बात बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, गाजर मूली पकाकर सलाम कहना कोई सलाम है साहब? तो वो कल जमशेद अली कादरी का जो आपका जो बात हुई थी, तो उनके जो बात कुछ बात कर रहे थे, मैंने 8 मिनट के सुना था मैंने तो, कि वो काफिर को, इमाम काबा को जो काफिर कहा था कि भाई इन लोगों ने स्मृति ईरानी को बुलाया था। नहीं, इमाम काबा को काफिर नहीं कीजिए, वो तो अल्लाह घर का इमाम है, नहीं तो फिर अपना ईमान ही क्या है, कोई नहीं ईमान तो का। देखो ऐसा नहीं है कि अगर इमाम काबा भी काफिर है तो कह सकते हैं ना, नहीं उसमें क्या नहीं, ऐसे नहीं, बगैर तहकीक तहकीक के के नहीं। साथ अगर होगी तो कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर आप मिले हो, उससे कोई बात की हो, हाँ तो जब मैं वही जब तो कह रहा हूँ कैसे ना। ऐसे कैसे कह दोगे आप, यहीं बैठे वही बैठे साहब चित्तौड़ में बैठे हो, कहीं बात ही नहीं की हो, कह दोगे इमाम काबा ऐसा अच्छा है। साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तहकीक होगी तो कहेंगे, और नहीं, तहकीक कौन करेगा? बड़े बड़े अल्लामा जो होते हैं, समझदार होते हैं, वही करेंगे ना। अल्लामा, कोई आलू बेचने वाला, प्याज बेचने वाला थोड़ी करेगा क्या? हाँ यही तो, ऐसे नहीं करनी चाहिए काफिर। करेगा तो वही है। अभी हमारे चित्तौड़ में भी ऐसे से हैं, पल्लंबर मिर्जा के छोरे स्टूडेंट बन रहे हैं, ठीक है, राबजी छोरों में राबजियत में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, अच्छा हम ये तो बात बस। बताओ, आपके काजी साहब की जो दरगाह है, हाँ बिल्कुल है। वो कभी काफिर इमाम आकर नमाज पढ़ाया उस मस्जिद में? काफिर इमाम का कौन आके पढ़ाएगा? कभी 100 साल में कभी आए थे काफिर नमाज पढ़ाने? कोई नहीं, नहीं आया? नहीं आया। आ सकता है क्या? देखो ऐसा है कि अगर निजामत अगर ऐसे लोगों का हाथ में चली जाती है, ये बताओ, तो जब काजी कुलियत साहब वाली की बात नहीं दरगाह होगी। पे काफिर निजामत, इमाम आके नमाज नहीं पढ़ा मेरी बात सकता, सुनिए हैदर तो साहब, ख्वाजगान मुर्शिद हिंदुस्तान की दरगाह निजामत में ऐसे तो लोगों सवाल का ही नहीं हाथ है। में चली जाएगी, और इमामुल क्योंकि अंबिया कुलियत उनका ताजदार होगी तो वो कायनात नमाज भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रोज़े नहीं अनवर जैसे के सामने मुसलमान कहने इमाम वाला है कैसे खड़ा नमाज हो पढ़ा तो सकता है? उसके पीछे थोड़ी नमाज छुड़ी जाएगी बस क्या? अकीदा। नहीं नहीं, अपने तो ये जानते हैं, जब कलेक्टर के सामने हम नहीं जा सकते, खड़े उतने में डर लगता है, क्यों नहीं जा बदन सकते? कब कपाए कलेक्टर अगर हमें बुला ले तो कलेक्टर सब साहब, चल रहा है, तो नहीं 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 अल्लाह नहीं, के रसूल के सामने क्या बदअकीदा खड़ा हो सकता है? भाई इतना समझो, आप जो समझदार अच्छा आदमी। होगा, अखलाकी होगा, पढ़ा लिखा होगा, उससे कुछ काम होगा तो बिल्कुल कलेक्टर के पास जाएगा और बेखौफ जाएगा, क्यों डर नहीं, के जाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल के सामने कैसे बदअकीदा खड़ा हो नहीं, सकता है? लेकिन इतना लेकिन सोचो। कलेक्टर के पास भी जाना होगा तो पीए के पास अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नुसरत बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई तो ये 1 महीने की दूरी आपसे तक। मिलना है तो वो मिलेगा कलेक्टर साहब अल्लाह से। के रसूल का रोब था ये, 1 महीने की दूरी बिल्कुल तक। करेगा, लेकिन एक बात बताओ कि जो फजीलत बरेलवी ने भी कहा, खालिक कुल ने मालिक कुल बना वो दिया, आपकी दोनों बात, जाए आपके एक कब्र। तो अतर साहब आप सुनते नहीं हो यार, आप मेरे हमारी भी, हम आपको कोई समझ के फोन कर रहे तो आप गुफ्तगू हमारी भी सुनो ना कोई। चलो हम सुनाओ ये तो। कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि कारी साहब की मस्जिद में कौन 100 साल में कोई काफिर आया कि नमाज पढ़ाने, भी ठीक नहीं आया, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, जब मैं मेरा अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ, जैसे कोई निजामत किसी और के हाथ में चली जाती है, जैसे सुलह कुलियत की निजामत हाथ में आ गई, ठीक है, अब वो हाँ, सुलह कुलियत वाली बात जो करेगा ना, नहीं नहीं नहीं, आज के दौर में यहाँ सब सही है, वहां भी सही है, देवबंदी भी सही है, लहदी भी सही है, वहां भी अच्छा, शिया भी अच्छा, राफजी भी अच्छा, नहीं नहीं सब है, ठीक है यार, पढ़ो आप नमाज को, फालतू बातें नहीं करेगा। और वो जो इमाम है वो यही रखता है कि भाई नहीं नहीं, वहां भी शिया राफजी है, लहदीस का सब ठीक है यार, अपना तो मुसलमान है खाली, तो उसके पीछे नमाज हम तो आज पढ़ेंगे ना, कल कयामत तक पढ़ेंगे, उसके पीछे क्यों पढ़ेंगे भाई? हम तो हमारा ईमान अकीदा के साथ पढ़ेंगे। मस्जिद को मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था क्या, मुनाफिकों को हटाया, फिर मस्जिद बनाई, फिर उन्होंने दावत दी, फिर जंग में गया, फिर जंग के बाद आए, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि साहबा को कि जला दो इस मस्जिद को, ये मस्जिद फितना है, यहाँ से फितना उठेगा। तो हर मस्जिद मस्जिद भी नहीं होती साहब, लेकिन किसी की जैसे अहले सुन्नतल मस्जिद पर ऐसे नींव हमने रखी, अब 100 साल में कब्जा किसी ने कर लिया, वो उसकी हुक्मरानी कर रहा, उसके मामला कर रहा, तो ठीक है छोड़ दो। वो आपने सुना नहीं, अच्छा हजरत मौला अली शेर खुदा, नहीं देखो, ये उस्मान मथा गनी की रदी जो अल्लाह मस्जिद का तआला इमाम है, ये मथा की हजरत मस्जिद का उस्मान इमाम है ना, वहाबी। हजरत उस्मान गनी रदी और अल्लाह तआला बनारस की मस्जिद का इमाम सुन्नी है। अब तो आप मौला बताओ, अली ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, 3 दिन तक मस्जिद छोड़ी है, अरे 7 दिन तक मथुरा मस्जिद की छोड़ी। मस्जिद का इमाम वहाबी है, बनारस की मस्जिद का इमाम सुन्नी है, तो क्या आप दोनों मस्जिदों के बारे में ये कहोगे ये हमारी है वो उनकी है?
देखो जो है वो जो तो कहेंगे मथुरा की है उसमें वहाबी इमाम है, और जो हाँ, तो बनारस की है सुन्नी इमाम है। तो क्या आप ये अच्छा कहोगे मथुरा वाली ले लो, हमारी बनारस वाली छोड़ दो? वो मस्जिद अगर अहले सुन्नतल की है वहाँ पे कब्जा अरे होगा। मथुरा वाली वहाबी इमाम है, वहां जाके मालूम करो आप। कहाँ पे? मथुरा में जो मस्जिद का मामला चल रहा है ना अभी, हाँ 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 हाँ। वो वहाबी इमाम है। और बनारस वाली सुन्नी इमाम है, ज्ञान वापी वाली। अच्छा वहाँ सुन्नी तो है। आप ये कह सकते हो कि नहीं भाई मथुरा वाली ले लो तुम, वो वहाबी की है, हम मुझसे मुसलमान नहीं हुआ, ऐसा कह दोगे आप? उसका देखो कागज तो वही नहीं लिखेगा ना। आप कह दोगे क्या? अभी तकलीफ में कहीं खड़े होकर कह सकते हो? नहीं मैं यूँ कह सकता हूँ नहीं, अगर जब आप कह रहे हो कि उसकी मुसलमान नहीं नींव ही मानते, अगर तो उसकी फिर नींव आप ही अगर चित्तौड़ में वहाबियों ने खड़े रखी होकर तो कहीं वो कह दोगे हमारे लिए 100 आदमियों में कि मथुरा वाली जो है वहाबी की, वो ले लो आप। कह रहा हूँ ना जिसने अगर नीम ही वहाबियों ने रखी है, बद मजहबों ने नीम रखी अरे है तो तो वो फिर मस्जिद। कब्जा, जब वो जो नमाज पढ़ा रहा है समझ लो आप, हाँ तो महीने। आप कब्जा करा रहे हो तो मस्जिद को मस्जिद कहा चलो जाएगा। चलो इमाम को यहाँ हटाओ। की नहीं, जो कोटा में वो, इमाम को हटाने कहा चलो जाता है। कोटा में तो है ना इनकी इमाम को मस्जिदें। हटाया, चलो इमाम को कोटा हटाया में तो जाएगा। उन्होंने ही नींव रखी है। इमाम को हटाया जाएगा नहीं ना। चलो कोटा में तो उन्होंने नींव रखी है ना कोटा में। किन्होंने 25 रखी? मस्जिदें हैं कोटा में, जो वहाबी है रात की नहीं है। है। हाँ आप जाके देखो वो 25 हो गई। 25 हो गई क्या? हाँ 5 अहले हदीस की है और 20 देवबंद वालों की है करीब करीब। अच्छा देखो कोटा तो मैं 2-3 बार गया था अभी। कोटा में क्यों हो गई? ये सारी रेड़ा में इदरीस रहता है, ये रामपुर का रहने वाला है, इसने देवबंदी से चंदा लिया शाही मावा सेंटर से। अच्छा तो ये लोगों के सामने हो रही है बात है कि ये तो चंदा ले रहा है, दूसरों को मना करते हैं, कुछ भी रखते हैं, यानी पब्लिक हाँ, इसीलिए कट गई। तो बिल्कुल तो वो ये तो वो तो पता चलेगा जब इसका खुलासा पता होगा जब। चलेगा तो पब्लिक दूर होगी ना कि हमें से क्या कहते हैं, और खुद जाके चंदा ले रहा है शाही मावा अच्छा अच्छा, सेंटर से। तो आप कब आ रहे हो चित्तौड़, कब आ रहे हो फिर आप? तो उसने फिर जो है कि 12 से चंदा लाया देवबंद वालों से, जो देवबंद को मानते हैं ना, सबको अच्छा मानते हैं। अख्तर साहब मैं ये कह रहा हूँ, अख्तर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि चित्तौड़ कब आ रहे हो फिर आप? इंशाल्लाह आऊंगा मैं। हैं? बकरे का गोश्त खिलाना मुझे, बकरे की बिरयानी और बकरे बकरे का गोश्त, बकरे की और बिरयानी देसी मुर्गा, ये और वाला फार्मी मुर्गा मैं नहीं खाता हूँ। बकरे का हलीम और बिल्कुल चित्तौड़ की रबड़ी और देसी मुर्गा खिला देंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। कब आ रहे हो? हैं? देसी मुर्गा, आप अंसारी हो क्या? नहीं नहीं हम रंगरेज है। अरे रंगरेज नीलगढ़। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रंगरेज समझो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी आप तुम्हारा भाई रंगरेज हूँ, है? भाई हूँ मैं भी तुम्हारा। अपन देखो रंगरेज रंगरेज मिलके ये काम करें हाँ कि रंगरेजों को बुरा समझते हैं बहुत से लोग, ये कुछ लोग उलामा लोग भी, कि यार ये तो रंगरेज है, घटिया नहीं समझना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, बेशक तुम्हें इज्जत वाला वही है अल्लाह के नजदीक जो परहेजगार है। हाँ बिल्कुल वही परहेजगार है। ये क्या अच्छा रंगरेज लगा रखा है इन लोगों ने, अंसारी मंसूरी, क्या है तरीका? अल्लाह ने हाँ मना फरमाया। अच्छा यही हाँ? तो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि इख्तिलाफ दूर करो, चलो हम करने चलो को हमने तैयार मालूम कर लिया, हैं। चलो ठीक है, मानते हैं कि रंगरेजों में आलिम नहीं है, रंगरेजों में आलिम नहीं है तो क्या? हम इस चीज पे इख्तिबार है, इख्तिलाफ दूर करो ठीक है। चलो हाँ। आज तुम कहते हो रंगरेज दूर करो, अपने आप को रंगरेज कहना बंद कर दो, सैयद साहब कहना बंद कर दो, पठान साहब कहना बंद कर दो, शेख साहब कहना बंद कर दो, फलाना साहब कहना बंद कर दो, और सबसे पहले ये कहो हम मुसलमान हैं। करोगे? नहीं नहीं बस नहीं साहब, नहीं नहीं साहब हम तो रंगरेज हैं, नहीं नहीं साहब हम तो पठान है, नहीं नहीं साहब हम शेख है। जब तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर ये इख्तिलाफ की बातें मत करा करो स्टेट पे। चलो वो तो खैर बरादरी तो रहे, वो तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जाअल्ना, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, अल्लाह ने फरमाया ए लोगों मैंने तुमको पैदा किया एक मर्द से एक औरत से, और तुम्हें बनाया है, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, तुमको शऊब में कबाइल में तकसीम किया है, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे की पहचान करा। वो तो बरकरार रहना जरूरी है, जातों का मामला, कबाइल का। तो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात लेकिन उसमें ये हिकारत वाली बात ना हो कि ये रंगरेज है, ये मंसूरी है, देखो ये हराम है, गुनाह कबीरा है किसी को हिकारत से देखना। बिल्कुल देखते ना कोई, अरे यार ये तो अरे यार ये तो नील। मान लो कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह रंगरेज हूँ, तो क्या मैं दलील हो गया है? नहीं होता है, कोई नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दलील समझ रखा है एक दूसरे को, वो सब्जी फरोश को दलील समझता है, वो मंसूरी को दलील समझता है, वो जो लोग जिसके पास ज्यादा पैसा उसको इज्जत देते हैं। नहीं ये बताओ, ये जो आपके ख्वाजा बाग वाले थे ये कौन सी बिरादरी के थे? ये पठान। तो फिर क्या नाम था उनका, ख्वाजा बाग वाले? शेर खान साहब। शेर खान साहब ने, अब ये टोंक में जो कुरान शरीफ रखा है ना, हाँ बिल्कुल रखा उन्होंने, टोंक में तो सब देवबंदी हैं, ज्यादातर तो नहीं, ज्यादातर तो देवबंदी है, नहीं सब वही हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो कुरान शरीफ रखने का वो बनवाया था, वो क्या कहते हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा म्यूजियम। हाँ लगभग 12 लाख रुपया लगाया, 15 लाख रुपया लगाया, वो सब शेर खान ने लगवाया। तो ये कहोगे साहब शेर खान सुन्नी नहीं थे, मुसलमान नहीं थे?
नहीं अरे भाई तो वो टोंक इलाका देवबंद वालों का है, लेकिन कुरान शरीफ के एहतराम के लिए उन्होंने पैसे दिया। तो अब इतनी सी बात पे किसी को ये कहना वहाबी हो गए वो तो, हैं? देखो जिसको वहां भी होगा। नहीं ये अब शेर खान ने वो जाके जमात से नमाज पढ़ ली जैसे अरब में जाके मस्जिद नबवी की मांगी, तो ये थोड़ी के साहब काफिर हो गए। अब हाँ ये तो इब्लीस नमाज ने कह दिया साजी जड़ा वाले ने कि जिसने नमाज नमाज पढ़ी है वो नमाज ही कदा हो गई। नमाज नहीं हुई इनकी, वो नमाज पढ़ लेंगे काफिर अरे नहीं भाई तू क्या आलिमुल गैब है? तूने क्या मस्जिद नबवी के इमाम का अकीदा देखा है? अल्लाह के है। रसूल की लेकिन मस्जिद का इमाम है, हैं? एक काम करो, बड़े बड़े जब जब ये बैठते ना, मैं तो खुद रहा हूँ 13 साल वहाँ पे कहाँ कुवैत। पर? कुवैत रहा हूँ 13-14 साल। अरे तो आपने देखा होगा कैसे कैसे आशिक रसूल यहाँ सब थोड़ी के एक साथ सबको आप कह दो कि वहाबी हैं। सबको नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे अरबी जो दोस्त होते ना, तो मेरा उनसे मुताला होता था, कभी बात करता था मैं उनसे, तो मैं उनको यही पूछता था कि भाई तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिंदा मानते हो या मुर्दा मानते हो? बोला हाँ खलास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस खलास। मैंने कहा, अच्छा तो वो ऐसे तू यानी वो कुल तो मिला के। एले हदीस होगा कोई। हाँ तो और उसी से वो आईपीएस वाले थे वहां पे, आइए हम आपको अल्लाह की नबी की बात बताएंगे। मैं कहा, अल्लाह के नबी तो है ये, बोला हमारे नबी की, हमारे रसूल की बात बता। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के नबी की हम बात बता। नमाज पढ़िए, दीन सीखिए। मैं क्या सिखाया बता? मेरे को मोहब्बत रसूल बता मेरे को। नहीं नहीं, रसूल अल्लाह की मोहब्बत जो है वो एक महदूद तक है। अच्छा, मैंने कहा वाह रे वाह जलील खार। मैंने कहा भैया से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिससे हम बिल्कुल यूं दूर रहते थे और इनसे बहुत तैयारी करते थे कि ये लोग अरे वो हमारे। एले हदीस फिरका अलग है हमारा हाँ वो में। एहले हदीसी है, एहले हदीसी है सारे। और जो मस्जिद नबवी का इमाम है वो इमाम अहले सुन्नत होता है। हाँ, वो देखो वहां सबको पे मानते हैं, सहाबा किराम अहले बैत और तो देखो जितने। वहां पे तो होता है ना, दो ही ग्रोह चलता है, शिया और सुन्नी। अब हाँ वहां वो जो मस्जिद नबवी का इमाम है ना वो कट्टर सुन्नी है, अच्छा इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में खड़ा नहीं हो सकता बदअकीदा। आपने तहकीक करी क्या? अरे अब आप इतना जानते हो, कोई पीर साहब जो आपने देखा होगा, पीर साहब के सामने कोई ऐसा वैसा आदमी खड़ा नहीं हो सकता ना सामने आके। हाँ नहीं रहता है। तो फिर अल्लाह के रसूल के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया और हुजूर ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरी रोप के जरिए से मदद फरमाई है। 1 महीने की दूरी तक जहां तक आदमी जा सकता है वहां तक अल्लाह के रसूल का रौब। अच्छा अब आपको मालूम है वो नूरुद्दीन जंगी जो नूरुद्दीन जंगी को हुजूर ने बशारत दी थी, दोनों को तो गिरफ्तार कर लिए थे ईसाइयों तो को, फिर करा ये था? हाँ? नहीं तो अच्छा साहब, फिर ये बात तो यहाँ पे भी आएगी ना, जैसे कुरान ने फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए हदीस हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाई जहाँ आपकी मर्जी हो। अल्लाह ने किबला बदला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, सैयद वहाँ मौजूद है आज भी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या सैयद पूरे इंडिया में आ गए, बिलग्राम मारिना में ही आ गए, कालपी में ही आ गए फिर हैं? नहीं सैयद तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जरूर जो नहीं, ईमान खास तौर से मक्का शरीफ मदीना शरीफ के जो असली सैयद हैं वो किसके हाँ पीछे नमाज पढ़ते हैं इनसे पूछे जाए। और सहाबा किराम की औलाद वहाँ मौजूद है, हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ हमारे यहाँ हमारे वतन में आए थे, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से थे। कई पुश्तों के बाद उनका सिलसिला था, हमने खुद मिले उनसे, वो नहीं कह मुसाफत रहा हूँ किया। मैं, सैयद हजरत सैयद अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से आए थे हमारे यहाँ। सैयद होना एक खुश नसीबी की बात है। तो अब ये जो सहाबा किराम की औलादों को ही मुसलमान नहीं मान रहे बरेली वाले, तो यार फिर तो गलत हो जाएगा। इस्लाम के लोग सब मुसलमान ही और थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद को अगर तुम मुसलमान नहीं मानोगे, कह लो सब के सब काफिर हैं हमारे में मक्का शरीफ दीन मदीना से में, तो फिरेगा फिर तो तो उसको गलत हो मानेगा, जाएगा। जो दीन से फिरेगा तो और उसको ये कहोगे जो मसले की हालत को नहीं मानेगा उसे हम काफिर मानेंगे, जैसे शमशाद घोसी ने कहा था ना बरेली में, नहीं कि जो क्या है सैयद हो हाशमी हो मदनी हो, जब तक मसले की हालत को नहीं मानेगा मुसलमान ही नहीं मानेंगे। तो फिर तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले तो ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं है। वो आप बात करोगे उनसे बैठ के और तो फिर आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पे तशरीफ लाएंगे, बताओ सही क्या चित्तौड़ में पैदा होंगे या उदयपुर में होंगे? क्या काय के लिए अरे तो उदय एक समझदार आदमी फ्रेश माइंड समझ लेगा। अथर हुसैन काजी की बात बहुत कांटा पकड़ बात और बहुत पॉइंट की बात है कि यार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब वहीं पैदा होंगे तो क्या वहाबी हजरत में पैदा होंगे? तो मैं कि वहीं वो पलटी खा जाएगा कि यार बात सही है, कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो ओरिजिनल खानदान में पैदा होंगे, वो खानदान आज भी मौजूद है, वहीं नमाज पढ़ते हैं, जिनके लिए बरेली वाले कहते हैं कि नमाज नहीं होगी और पढ़ ली तो काफिर हो जाएगा। तो वो जमशेद अली कादी से बात हुई थी, तो फिर उसका मुकम्मल जवाब भी कहा दिया इमाम था। मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पैदा होंगे आप, और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहीं तशरीफ लाएंगे। ये किसी मसलक की पैरवी नहीं करेंगे, ना मसलक अहले हदीस की, ना शाफी की, ना मालिकी, ना हंबली, ना किसी मसलक की में। ये दोनों के दोनों मुज्तहिद मुतलक होंगे और इमाम वक्त होंगे अपने। जमशेद अली कादी साहब का कहाँ जवाब दिया था आपने? वो दिल्ली वाले जमशेद अली कादी देखो वो है कमल के जंग से बात कर रहा था, वो मेरे से दोबारा से कहो फोन करे। हाँ मैं बात करवा दूंगा ना मैं आपको। कभी कभी क्या होता मूड में नहीं होता ना, जैसे अभी सो के उठा था मैं, तो मैं अभी ना लूं ना तो के मैं मैं नहा दुकान के जा रहा हूँ, और फिर आपको तुम्हारी शादी मैं दुकान पे जाके फोन करता हूँ आपको, कॉन्फ्रेंस दुकान पे जाके फोन करो मुझे,
ٹھیک ہے. اور تم ان چکروں مت پڑو دیوبندی بریلوی اہل حدیث. اپنے سنی بنے رہو کٹر اور غریب نواز کے ماننے والے بنو جیسے خواجہ باغ والے تھے نا, خواجہ باغ والے. بالکل. تم دیکھو مسلک کے اعلی حضرت کی جگہ مسلک کے غریب نواز کا نعرہ لگاؤ گا کٹر سنی ہو تو. میری اصلاح آپ کر دو, آپ کو میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہاں میں چلتا ہوں اللہ کے رسول, صحابہ, تابعین, اہل بیت, طب تابعین. ٹھیک ہے, پھر امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہو؟ نہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ارے عنہ. علیہ السلام کا جب امام بخاری نے لکھا کٹر سنی ہے تو نہیں تو میں نہیں ماننے والا. کٹر سنی. غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے, تم کون ہوتے ہو, کیا غوث پاک سے بڑھ گئے تم؟ نہیں, کس نے لکھا؟ نہیں, علیہ السلام لکھا ہے غوث پاک نے, کنیت الطالبین نے, امام حسین علیہ السلام. کس نے کیا لکھا؟ عبدالعزیز صاحب نے علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو, سید فتح الزہرا کو, امام بخاری نے لکھا ہے. علیہ السلام تجھے لگتا ہے نا وہ نبیوں کی ارے چلو اپنا کام کرو, امام حسین علیہ السلام, چلو وہاں بھی ہو, چلو تم